Welcome student, physics class. Today is the topic is capacitance and subject is physics. Today we are going to start the capacitance. Before to describe the capacitance, we have to knowledge about the electron volt. What do you mean by electron volt? क्या होता है हमारा electron volt? This is the unit of energy in atomic physics. Okay. We will try to understand what is electron volt. Topic इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वेन एवर चार्ज मूव्स थ्रू वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या बात कर रहा हूं मैं जब एक चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बोला मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट. What is the charge of electron? All of you know 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb into 1 volt. It will become 1.6 into 10 raised power minus 19 joule. This is the definition of 1 electron volt and this one will be the value of 1 electron volt. Now we will take some of the this is the unit of atomic physics. किसकी यूनिट है एटॉमिक फिजिक्स में एनर्जी का यूनिट है हमारा ये सॉरी okay now we will consider what is 1 milli electron volt 1 mega electron volt 1 giga electron volt 1 tera electron of volt. All of this conversion you have to knowledge about it because numericals में ये सब चीज़ें यूज होती हैं हमारी. Okay, 1 milli electron volt. What do you mean by milli? Milli means 10 raised power minus 3. 1.6 into 10 raised power minus 19 into 10 raised power minus 3 joule. It will become 1.6 into 10 raised power minus 22 joule. Now the question is mega electron volt means मेगा मतलब मिलियंस में भी हम बात कर सकते हैं मिलियंस में कितना पावर होता है 10 रेज पावर 6. ओके स्टूडेंट 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 इंटू 10 रेज पावर 6 मिली 10 रेज पावर माइनस 3 बट मेगा 10 रेज पावर प्लस 6. माइक्रो की अगर हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे हम माइक्रो में क्या होगा हमारा 10 रेज पावर माइनस 6. You have to remember this plus 6 and that micro is minus 6. Okay, 10 raised power plus 6. It will become 1.6 into 10 raised power minus 13 joule. Now the giga 1.6 into 10 raised power minus 19 10 raised power 9. giga में कितना होता है हमारा 10 raised power 9. Okay, now 9 it will become 1.6 into 10 raised power minus 10 joule. Now the next is tera. How many power of 10th in tera? That is 12 plus 12. 1.6 into 10 raised power minus 19 into 10 raised power 12. It will become 7. 1.6 into 10 raised power minus 7 joule. These are the conversion of units. Okay. Student, now the next topic is what do you mean by free charges and what do you mean by bound charges. Bound charges और free charges क्या चीज होते हैं bound charges bound और free and bound charges. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री चार्जेस की. फ्री चार्जेस क्या होते हैं कोई घर में आपका बंदा फ्री भी होता होगा तो उस फ्री बंदे को हम कहीं भी काम के लिए लगा देते हैं इजीली वो कहीं पर चला भी जाता है उसको हम फ्री बोलते हैं उसको क्या कहेंगे हम फ्री. अब हम आते हैं अपने टेक्निकल टर्म्स में. टेक्निकल टर्म्स मीन्स कि कौन से चार्जेस किसी भी मेटल से इजीली बाहर आ सकते हैं और कौन से चार्जेस इजीली आउट नहीं हो सकते. हमने कहा कि हमने 2 मेटल्स ली और रब किया उनको एक दूसरे के साथ या फिर अपनी बॉडी पे रब किया कहीं भी रब कर सकते हो आप और इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर होने लगते हैं. ओके तो इलेक्ट्रॉन आर द फ्री चार्जेस. क्या है इलेक्ट्रॉन फ्री चार्जेस. क्यों है इलेक्ट्रॉन फ्री चार्जेस क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं. पहला रीजन क्या है आउटर. वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट सेकंड वीडियो में. आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहाँ पर होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट. नाउ सेकंड इज जो मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का
lesser than the proton. That's why the electrons are free, it can move easily from the metal, but the proton cannot move. First reason, the mass is greater than to the mass of electron. How much greater than? It will be 1837 times greater than to the electron. That's why the proton cannot move easily. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे कि फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाउंड चार्जेस हमारे प्रोटॉन होते हैं. नाउ द स्टूडेंट नेक्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट द नेक्स्ट, दैट इज आर टॉपिक कैपेसिटेंस. देखिए कैपेसिटेंस तो मैं आपको पूरा टॉपिक कल समझाऊंगा, बट आज मैं इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि एक्चुअली में है क्या चीज़. हमारा कैपेसिटेंस को हम कैसे बेटर समझ सकते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. एक बुक्स आप स्टडी करेंगे, सिंपल सा है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है दैट इज नोन एज कैपेसिटर. ओके, और जो जितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी हो गई, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है. दोनों ही बातें हम बोल सकते हैं, बट द एनर्जी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि चार्ज को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है. इज दैट क्लियर? चलिए मैं बात करता हूँ. अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है. अब अगर आपसे पूछ रहा है कि आप इस कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग द चार्ज दिस कंडक्टर कॉन्टिन्यूसली, व्हाट हैपन्स विद इट, इसकी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी. अब दे रहे हैं तो सीधी सी बात है इंक्रीज होगी. क्या इंक्रीज हो सकता है? आंसर है कि यहाँ पर दो चीज़ें इंक्रीज होगी. एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. Yesterday we have discussed the electric potential energy of the system of charge or single. Okay, now if you are giving the positive charges to this conductor, which quantity will get rise? Means electric potential. चार्ज के देने से क्या इंक्रीज हो रहा है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एक कंडक्टर आपने दिया और इसके चारों तरफ हमारा चार्ज है, हम देते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, समझ में आता है. बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हाउ यू कैन से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेट इंक्रीजेस? द रीजन इज व्हेन एवर, सपोज कीजिए आपने इसको पहले चार्ज दिया, एक सपोज करो क्यू चार्ज दिया, फिर आप दोबारा से क्यू चार्ज लेके आ रहे हो. अब देखिए, अब ये जो क्यू चार्ज है अपना कुछ ना कुछ फील्ड बनाएगा, इस फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को वर्क करना पड़ेगा. तो वो जो वर्क है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? दैट इज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो हम कहेंगे कि चार्ज पोटेंशियल इंक्रीज करता है एंड जो हमारा सेकंड ऑप्शन है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, ओके. अब देखिए स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं कि हम इसमें चार्ज देते जा रहे हैं. अब यहां पर क्या हो रहा है? अब इसके सराउंडिंग्स में क्या है? आंसर है एयर के मॉलिक्यूल्स है. क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स है. जब हमने इसको फिल किया, यहाँ पर हमने एक चार्ज दिया, फाइनल लास्ट वाला चार्ज, तो हम क्या देखते हैं कि ये एयर के जो चार्जेज है, एयर हमारा क्या है? इंसुलेटर. उस एयर के चार्जेज से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेता है, क्योंकि चार्ज कैसा है हमारा? ये पॉजिटिव चार्ज है. क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, और जैसे अट्रैक्ट करेगा हम देखेंगे कि इस सिस्टम के अंदर चार्ज रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, यानी कि चार्ज विल बिकम पॉजिटिव. +1 वहाँ पर हो जाता है और इधर भी जो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है हमारा. क्लियर हुई? अब देखिए, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके सराउंडिंग में एक बेस्ट इंसुलेटर लगाना है. क्या लगाना है हमें? बेस्ट इंसुलेटर. तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से. हम कहेंगे कि जो अब इसकी जितनी कैपेसिटी थी, किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर 1 सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर 2 नेचर्स के ऊपर डिपेंड करती है. किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है और नेचर के ऊपर डिपेंड करती है. चलिए अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं. हमने कहा कि हमने चार्ज को इंक्रीज किया. क्या इंक्रीज हुआ? पोटेंशियल. whenever we will increase the charges, the potential will also increase. अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं. Q is equal to
proportionality constant C and V. What is this C? C is the capacitance of this conductor. क्या है C हमारा यहाँ पर? कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर का क्या है? ये कैपेसिटेंस है. इतना क्वांटिटी या फिर इतना चार्ज ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से उसका ये वाला पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट. इसी को कंप्लीट कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज द कैपेसिटर? कैपेसिटेंस की हम अभी बात कर रहे हैं. व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. अब देखिए दो चीजें यहां पर ध्यान से समझिएगा. कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज. और किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल. जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चार्ज देने पर उसका कैपेसिटेंस जितना चार्ज देंगे हम उतना हमारा जो है कैपेसिटी उसकी हमें नजर आएगी. सिंपल सी बात है. बट द पोटेंशियल विल गेट राइज स्मॉल. पोटेंशियल कम इंक्रीज होना चाहिए. इस कंसेप्ट को समझिएगा. ये जो पोटेंशियल है ये इंक्रीज कम होना चाहिए. इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मैंने कहा कि वी कैन अंडरस्टूड दिस बेटर. हमने दो टैंक लिए. एक टैंक ये है हमारे पास और एक टैंक हमारा इस टाइप का है. अब हमने दोनों टैंक में 1 लीटर या 20 लीटर पानी फिल किया. जब मैंने देखा कि जब मैंने 20 लीटर पानी फिल किया तो ये टैंक यहाँ तक फिल हो गया. इसका पोटेंशियल यहाँ तक राइज हुआ, बट इसका पोटेंशियल सिर्फ यहाँ तक राइज, क्योंकि इसका जो बेस है, इसका जो साइज है वो क्या है हमारा? बड़ा है. तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा. तो मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल कम होगा उतना ही कैपेसिटी ज़्यादा होगी. तो हम क्या कह रहे हैं? एक कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस पहला नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सराउंडिंग. कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द सराउंडिंग्स मटेरियल. तो सराउंडिंग्स में जो मटेरियल होगा दैट्स विल बी इंसुलेटर. और वो इंसुलेटर जो अच्छा इंसुलेटर, जो चार्जेस को कम लूज करे. ओके. नेचर ऑफ द सराउंडिंग्स मटेरियल, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. साइज नंबर 2 किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारा ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है. दो चीज़ें हमने लिखी यहाँ पर. एक साइज के ऊपर डिपेंड करता है और एक दूसरा करता है हमारा नेचर के ऊपर डिपेंड. थर्ड किसके ऊपर डिपेंड? ये दो चीज़ें हमसे पूछी जाएगी. थर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो हायर लेवल की, अगर हम उसमें घुसेंगे तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस. है बहुत कुछ इसके अंदर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टूड द यूनिट ऑफ दिस. व्हाट इज द यूनिट? दैट इज सी. सी का यूनिट क्या हो गया? यूनिट. विच यूनिट? एसआई यूनिट. पूछेगा आपसे कि कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? दूसरा साइज एंड शेप के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. तीसरा थर्ड वन इज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सेकंड नेचर ऑफ द सराउंडिंग मटेरियल्स, जो उसके सराउंड में मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है. मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन खींच लेता है. अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर ना आए, मतलब कि ये कोई इंसुलेटर हो, इजीली बाहर नहीं आएगा, तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, यानी कि इसका चार्ज कम नहीं होगा. मैंने कहा इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव जितने थे एक माइनस हो जाएगा. सिंपल सी बात है. ऐसे देखो, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैंने इसको 10 चार्ज दिए, इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है. अब यहाँ पर 10 चार्ज है हमारे नेगेटिव और ये न्यूट्रल है हमारा. ये क्या सपोज करो? न्यूट्रल है. न्यूट्रल, इसको समझना बच्चों. ये अगर न्यूट्रल है, इसको हमने 10 चार्ज दिए. अब इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या कहती है चार्जेज की? इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके अपने में मिलाने की है. अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लिया तो 10 प्लस चार्ज है और 1 माइनस चार्ज है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? +9. और यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा? 1. अब ये जो मटेरियल है इसके सराउंडिंग्स में, इस पर भी चार्ज आ जाएगा और इसका ये बड़ा हार्मफुल होता है. अगर हम यहाँ तो कुछ नहीं, छोटे छोटे कैपेसिटर लगते हैं. जब हम बिजली बोर्ड में वर्क करते थे तो वहाँ पर बहुत हैवी कैपेसिटर, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है. ठीक है. +9, पहले 10 दिया हमने, +9. तो ऐसे करके हमारे चार्जेस क्या होते जाएंगे? लूज होते जाएंगे. राइट.
क्या होते जाएंगे, लूज, फिर हम देंगे तो वो कंप्लीटली कैपेसिटी उसकी प्रॉपर नहीं आ पाती। तो हम कहेंगे कि मैटर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग्स में जो मैटर है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके स्टूडेंट। नाउ द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यू? क्यू की यूनिट क्या होती है? क्यू का यूनिट होता है हमारा कूलम, वी वोल्ट, कूलम वोल्ट इनवर्स, दिस इज द यूनिट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी बोर्ड में जो दो चीज़ें बताई ये बोर्ड में आने वाली होती है। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि व्हाट इज द एसआई यूनिट। नाउ द डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन। चलिए डायमेंशन डिस्कस करते हैं। 11th में वैसे हम कर चुके हैं। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है हमारी? चार्ज की डायमेंशन होती है ए इंटू टी, राइट। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या हो गया हमारा? कूलम। वी क्या होगा हमारा? वो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन को ऊपर लेके इट विल बिकम कूलम स्क्वायर अपॉन वर्क डन। ये हमारा, अब हमें इसका यूनिट बनाना है। इट मीन्स ए टी का होल स्क्वायर मीन्स A2, इसको ऐसे लिख लेते हैं A2 एंड T2 अपॉन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन? सबको पता है, सबको मालूम है, ml2T-2। द डायमेंशन विल बिकम m, ऊपर जाके माइनस में, फिर L 2 है, ऊपर जाके माइनस में, ml -2। नाउ T ऊपर जाके प्लस में, T4 A2। आई होप यू गॉट इट। कूलम चार्ज का क्या यूनिट है हमारा? कूलम अपॉन वोल्ट, कूलम स्क्वायर अपॉन वर्क डन, ml2T-2 A2 T2, m ऊपर गया माइनस T, सॉरी L आएगा बेटा, ये L -2 एंड T2 ये ऊपर जाके +2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इट विल बिकम 4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो कैपेसिटेंस है उसकी यूनिट सिर्फ यही बोल सकते हैं? हमने कहा नहीं, हमने उसका एक नाम रख दिया कंबाइंड करके। हमने नाम रखा उसका कि फैरड। क्या नाम रखा हमने इसका? फैरड। एक्चुअली फैरड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब आंसर है, जब बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो हमने ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन ये था हमारा कि फैरड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, हमने इस फैरड को चूज क्यों किया? आंसर इज कि जब फैरड हमारी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसको हमें चूज करने की कोई नीड नहीं थी। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो चार्ज है हमारा, दैट इज ए वेरी बिग क्वांटिटी, और चार्ज और पोटेंशियल को हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके थे। फिर हमारी मजबूरी हुई, हमारी जो है ये मजबूरी थी कि हमें फैरड ही लेके चलना पड़ा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब हम कहेंगे कि क्या ये कैपेसिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एनी अदर फॉर्म ऑफ द कंडक्टर? हमने कहा कि हाँ कर सकते हैं हम इसको डिस्क्राइब। अब हमने ये चीज़ स्टडी की, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्पेरिकल कंडक्टर है या फिर स्पेरिकल बॉडी है तो उसका चार्ज क्या, सॉरी कैपेसिटेंस क्या हो सकता है? कोई भी स्पेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस हमारा क्या हो सकता है? स्टूडेंट, ये कल हम डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल बॉडी, इज दिस कैपेसिटेंस इज पॉसिबल और नॉट। ओके स्टूडेंट।